I welcome you again to this new session regarding rent. We have already discussed what is rent in Land Revenue Act also, and also we have discussed it a bit when we talked about rights and duties of landlord and tenant towards each other, especially in section 12 of this act. We talked about the importance of rent when it comes to the division of produce. Uh, Rent, as we have already discussed, is some consideration actually that is paid by tenant to the landlord against the usage of such land. We will see it now. So, what is rent? Rent is the consideration paid by tenant to the possession of the land. Under the present act, rent is whatever payable to a landlord in money. So, in terms of money, in terms of cash, in terms of bonds, in terms of maybe gold or like silver, or in any other terms. Again, we have to see the special contract between landlord and tenant in this sense, or in kind. For example, what kind of crops are there, what kind of thing is grown there, whether some vegetables are grown there, whether some fruits are grown there, on account of land held by him, but it does not include any cess or contribution or dues or any other free service. So there should not. So again, there should be some consideration. अब वो कंसिड्रेशन कोई कल्टिवेटेड क्रॉप हो सकती है, वो पैसे हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो कोई और स्पेशल सर्विस हो सकती है, लेकिन कोई फ्री चीज़ ना हो, कोई फ्री सर्विस ना हो, या कोई रेट और सेस ना हो. अगेन रेट और सेस वही है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने सेक्शन 4 में पढ़े थे टर्मिनोलॉजीज में. आप उसको दोबारा बेशक उसको आप देख सकते हैं. It can be in the form of money, crops, or service. As I've said, kind of rent in terms of produce can be batai rent, that is the share in crops, rent payable in fixed rate. There can be chakotra, which is the fixed amount of grains in spring and fixed amount of cash in autumn harvest. So there can be some other types too. For example, when you harvest some crop, जिस तरह के आपने wheat को अगर किया है, तो उसका जो वो बीजों के अलावा जो पूरा उसका जो पौधा बचता है, द प्लांट अदर देन द सीड्स, बिकॉज फ्रॉम द सीड्स ऑफ वीट यू श्योर हैव फ्लावर, लेकिन जो उसका जो पौधा है पूरा, दैट इज़ यूज्ड फॉर दी फॉर कैटल ऑल्सो. तो मतलब कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये इनमें से किसी एक सूरत में भी हो सकता है जो रेंट है. तो अभी जो हम ये देखेंगे रेंट, स्पेशली हमने भी जो इसमें भी हमने पढ़ना है, वो इस क्वेश्चन में हम दो चीज़ें देखेंगे. एक ये चीज़ हमने देखनी है कि रेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस कैसे डिटरमिन होता है. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया पहले सेक्शन 12 में कि भाई ये उसके लिए दोनों का होना ज़रूरी है, टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का. एट द सेम टाइम टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड बोथ ऑफ देम हैव द राइट to see the produce, to determine their share from the produce. But how is it done? What is the procedure of having rent from the produce? This procedure we will see, and we will also see that how and when rent is deposited to the revenue officer, not to the landlord. हमने यानी कि दो चीज़ें देखनी है. एक, वो कौन सा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के तहत रेंट जो है जब प्रोड्यूस की शक्ल में मिलता है, तो वो किस प्रोसीजर के तहत आपको मिलता है. यानी अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान ये वायदा है कि जो क्रॉप्स ग्रो होंगी उन क्रॉप्स से हमने रेंट लेना है, उन क्रॉप्स से यानी उस प्रोड्यूस से हमने रेंट लेना है, तो वो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, नंबर 1. एंड नंबर 2, when it is deposited before the revenue officer, that is the second part of this question. So first we will discuss about section 13, 14 and 15. According to section 13, where rent is taken by division or appraisement of produce. Division means you are dividing, and appraisement means you are actually evaluating it.
You are trying to know the value of the produce. This is appraisement. और कहते हैं कि हमने अप्रेजल करना है किसी चीज़ का. रेंट कैन ऑल्सो बी टेकन बाय फिक्स्ड रेट ड्यू टू नेचर ऑफ क्रॉप्स बाय एनी रेट रिकग्नाइज्ड इन दैट एरिया. कोई भी उसमें रिकग्निशन का कोई भी फ़र्ज़ किया, अगर बलूचिस्तान में किसी को एक इलाका है वहाँ पे किसी और तरीके से उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है रेंट को, जब आप क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं. उधर कोई उसकी मेजरमेंट की कोई का जो यूनिट है वो कोई और है, जबकि पंजाब में मेजरमेंट का यूनिट जो है वो कुछ और हो, टन हो, 1 टन है, मन है एक जगह पे, किलोज़ में है, या जिस तरह. बाय रेंट इन ग्रॉस इन दैट टेनेंसी, जब उस पूरी टेनेंसी में जितनी मालियत की चीज़ें निकलती हैं उन सारों को इकट्ठा करके जो उसकी वैल्यूएशन बने वो. रेंट में ऑल्सो बी टेकन बाय लैंड लॉर्ड पार्टली बाय एनी ऑफ द बिफोर मैंशनड एंड पार्टली बाय वन ऑफ देम. यानी कि ये भी हो सकता है कि वो डिवीज़न और अप्रेजमेंट, यानी अब या देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ एक एग्जांपल के तहत कि हो सकता है कि मेरी लैंड है और मैंने टेनेंट के साथ ये मुआहदा किया हुआ है कि भाई जब तुम मेरी लैंड जब भी इसमें से कोई प्रोड्यूस निकलेगा, हाफ रेंट वो प्रोड्यूस का होगा जो प्रोड्यूस निकल रही है, और हाफ जो रेंट है वो चूँकि तुम इसमें मजदूरी भी कर रहे हो, तुम इसको बेचोगे भी, लेके जाके सब कुछ करोगे, तो चलो वो हाफ जो है मैं तुम्हारी उस मजदूरी के उस सेंस में काट लेता हूँ, सर्विसेज के उसमें काट लेता हूँ. तो ये आपने फिर नेचर ऑफ क्रॉप्स भी देखनी होती है, क्योंकि कई क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका बाद में वो वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, दूसरा मटेरियल नहीं निकलता फॉर द कैटल फार्मिंग, लेकिन कुछ का निकल आता है. जिस तरह अगर आपने वहाँ पे कॉर्न की जो आपकी जो होती है, जो फसल होती है, या वीट की जो फसल होती है, उसका आपको वो उसका जो पौधा है बाकी जो है वो जिसको हम आम ज़बान में भूसा भी कहते हैं, वो आपका मौजूद होता है, जिसकी बाकायदा एक कीमत होती है, जिसकी एक प्राइस होती है बाकायदा. तो ये ड्यूरिंग द हस्बेंड्री, यानी कि कल्टीवेशन के दौरान फिर आपने और टेनेंट ने और लैंडलॉर्ड ने आपस में ये मुआहदा करना था कि वहाँ पे किस नोयत की वो है क्रॉप है, वहाँ पे क्या कॉलीफ्लावर्स यानी कि गोभी के फूल उग रहे हैं, वहाँ पे क्या टमाटर उग रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ उग रही है, ये देखना होता है. रेंट में ऑल्सो भी टेक. अच्छा, ओके, नेक्स्ट सेक्शन 14 विल बी ओके. सो बिफोर दैट रेंट में ऑल्सो भी पेड पार्टली बाय प्रोड्यूस, सर्विस और कैश, यानी कि तीनों में से कोई एक चीज़ आपस में मिक्स करके भी हो सकता है. 14 में ये है कि इवन इफ अ टेनेंट हैज़ ऑक्यूपाइड अ लैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ही इज़ लायबल टू पे रेंट. ये एक राइट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इन केस ऑफ 2 लैंडलॉर्ड, टेनेंट इज नॉट बाउंड टू पे रेंट पार्टली टू बोथ. यानी अब एक ज़मीन के 2 लैंडलॉर्ड्स हैं, तो और दोनों को प्रोड्यूस का हिस्सा प्रोवाइड करना, तो टेनेंट के लिए बड़ी हार्डशिप हो जाएगी कि एक लैंडलॉर्ड कहीं और रहता हो, दूसरा कहीं और रहता हो, आधा हिस्सा वो एक को लेके जा रहा हो, आधा हिस्सा वो दूसरे को लेके जा रहा हो, तो वो दोनों को देने का लायबल नहीं है. इस सूरत में अगर कोई मसला होता है तो वो भी हम आगे देखेंगे कि उस सूरत में उसके पास क्या चॉइसेस होती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके लिए इतना ज़रूरी है समझना कि अगर किसी ज़मीन के 2 या 2 से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स हो तो टेनेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को रेंट प्रोड्यूस की शक्ल में देता फिर, क्योंकि ना कैश की शक्ल में देना तो फिर आसान है, लेकिन वो पूरा प्रोड्यूस की शक्ल में उस तक पहुँचाना या वो करना, इट विल बी अ ग्रेट हार्डशिप ऑन द पार्ट ऑफ टेनेंट. Section 17 says that before division or appraisement, if the tenant does some act to prevent such division or appraisement, then such produce will be considered to be same as of the similar land in neighborhood for that harvest. For example, मेरा टेनेंट है, मैंने उस दिन आना था, मैंने उस फसल को प्रोड्यूस को देखना था, मेरे आने से पहले उसने मुझे जगह से गायब कर दी, या उसने ये कह दिया जी कि वो जी देखिए जी तूफ़ान आया था वो तो उड़ गया एकदम, भाई वो नुकसान हो गया इतना, तो अब तो इतना रहा नहीं. तो इस सूरत में जब मुझे उसकी इस चालाकी का पता चलेगा तो फिर मैं अगर रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाऊँगा तो रेवेन्यू ऑफिसर फिर ये देखेगा कि उस जगह पे उस तरह की ज़मीन में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, तो उस प्रोडक्शन के हिसाब लगा के यही समझ जाएगा कि वो ज़मीन वो जो उसने गायब कर दी फसल, या वो किसी वजह से उसने उसको कोई ऐसा एक्ट किया है कि जिसकी वजह से प्रॉपर अप्रेजमेंट और प्रॉपर डिवीज़न नहीं हो सकती, तो
अगेन समझा यह जाएगा कि वहाँ पे वो उतनी फसल मौजूद है जो उस तरह की किसी और लैंड में होती है, नेबरहुड में. Section 17 says when rent is taken by division or appraisement, then in such division both landlord and tenant have to be present. ये हमने पहले भी बात इसको देखा है. In case both or either of the landlord or tenant are unable to be present, then revenue officer on application made to him by either party on this behalf appoint a referee to decide the matter. So in the case where there is a hardship, there is a difficulty to understand division or appraisement, then revenue officer may be called upon and he may appoint a referee to assess, to do the appraisement, to evaluate each and everything. Then comes section 18, which says that such referee at the directions of revenue officer shall associate himself with the assessors for such division or appraisement and finalize the report and submit the same to the revenue officer. अब वो जो रेफरी है वो बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स की डायरेक्शंस पे ही काम करता है और उसकी डायरेक्शंस पे वो इसको इंस्ट्रक्शंस देता है और उस इंस्ट्रक्शंस यानी रेवेन्यू ऑफिसर उसको इंस्ट्रक्शंस ये देता है कि भाई तुम इसको इस तरीके से तुमने इसकी अप्रेजमेंट करनी है, इस तरीके से तुमने रेवेन्यू ऑफिस वो जो लैंडलॉर्ड है उससे मिलना है, टेनेंट से मिलना है. और वो उसको ये भी कहता है कि तुम अपने साथ कुछ एक जो एक्सपर्ट लोगों की टीम बेशक बना लो जिनको आप असेसर्स कहेंगे, ताकि तुम उन एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ मिल के इस सारे मामले को हल करो. अब वो जो एक्सपर्ट लोगों की जो टीम है उनको उन समेत जो रेफरी है आपका वो फिर उनको रख सकता है. और वो रख सकता है क्यों? जब उसको इंस्ट्रक्शन ये मिलती है. और रेफरी याद रख लें जो नोटिस वगैरह जो सर्व कराता है ना, वो कराता है रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू ही है हर चीज़ में. रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि रेफरी खुद से शायद नहीं, रेफरी खुद से नहीं बुला सकता, उसने सारे काम रेवेन्यू ऑफिसर की इजाज़त से करने होते हैं. तो जो नोटिस जाएंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को, वो भी उसकी इजाज़त से जाते हैं और उसी की इजाज़त से वो फिर उस जगह में दाखिल हो सकता है जहाँ पे जाके उसने इवेलुएट करना हो, असेस करना हो उस डिवीज़न को, इस अप्रेजमेंट को. फॉर एग्जांपल अगर 50 टन एक जगह से पैदावार होती है और उसमें से 25 टन किसी तरीके से गायब है, तो जहाँ पे बाकी 25 टन मौजूद होती है तो वो रेफरी उन असेसर्स के साथ उस जगह पे जा सकता है और जाके मुआयना कर सकता है कि भाई उसकी इंस्पेक्शन करके भाई कैसे गायब होगी ये वो जगह से. मुझे जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी है कि टेनेंट ने कोई ऐसा कोई एक्ट किया है, और नॉर्मली इस तरह के झगड़ों में ऐसे ही होता है क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि बिफोर कटिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग जो टेनेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो उन सारी क्रॉप्स को या वो सारे प्रोड्यूस को अपनी तहवील में रख सके. तो ज़ाहिर बात है जब उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है तभी कोई मसला जब होगा तो उसमें तो लैंडलॉर्ड का कोई कसूर नहीं है. पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स सेक्शन 19. अब इस सेंस में आगे क्या होता है? The report submitted by the decree on this behalf shall be signed by the revenue officer. Sorry, इसमें डिक्री नहीं, रेफरी था, मुझसे गलती से डिक्री लिखा गया. यानी कि जो रेफरी जो है वो सबमिट करता है रिपोर्ट, तो वो उसको रेवेन्यू ऑफिसर साइन करता है. रेवेन्यू ऑफिसर में ऑल्सो कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी, मे कन्फर्म और वेरी सच रिपोर्ट. अब देखिए रेवेन्यू ऑफिसर उस रिपोर्ट जो उसको रेफरी ने दी है उसका पाबंद नहीं है, वो मज़ीद इंक्वायरी ख़ुद से भी कर सकता है और उस रिपोर्ट को तब्दील भी कर सकता है. रेवेन्यू ऑफिसर में ऑर्डर फॉर कॉस्ट टू द एप्लीकेंट फॉर कवरेज ऑफ रेफरी एंड असेसर्स. अब जिस शख्स ने ये एप्लीकेशन दी है तो उन असेसर्स का और उस रेफरी का भी ख़र्चा जो है वो शख्स बर्दाश्त करेगा एट द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर. ये है सेक्शन 19 में हमने पावर्स को देखा है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है. अभी तो देखना, अभी जो हमने पूरा पढ़ा वो एक प्रोसीजर था कि कब जब लैंडलॉर्ड में और टेनेंट में मसला पैदा हो जाए कि रेंट जो है अगर वो पे करना हो किस सूरत में, प्रोड्यूस की सूरत में, तो उस मसले को आप हल कैसे होगा, रेफरी कैसे अपॉइंट होगा, असेसर कैसे अपॉइंट होगा, ये भी हमने देख लिया. अब ये है कि अगर लैंडलॉर्ड को रेंट तो उसी को पे करना होता है, लेकिन कब जो टेनेंट है वो रेंट जो है वो बजाय लैंडलॉर्ड के रेवेन्यू ऑफिसर को जाके पे करेगा, तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं? व्हेन टेनेंट इज लायबल टू पे रेंट, वी ऑलरेडी नो टेनेंट इज लायबल टू पे द रेंट.
बट इफ लैंड लॉर्ड विद मेलाफाइड इंटेंशन डज नॉट रिसीव इट, जब लैंड लॉर्ड इसको रिसीव ही ना करे, या रिसीव करे तो उसको रसीद ना दे, या फिर जो टेनेंट है वो ये सर्टेन ना कर पाए कि बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स हैं या बहुत से लोग हैं जो एक ज़मीन के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उसकी ऑनरशिप का, तो वो किसको पैसे दे जाके, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर एक को दिया हो सकता है वो बाद में केस आ जाए तो वो कहे जी कि तुम उस दूसरे को देना था, दूसरा कहे जी कि तुमने जो है वो तुमने मुझे नहीं दिए, तुमने तो उसको दे दिए पैसे। तो इस सूरत में जो है, और तीसरा ग्राउंड ये कि अगर मॉर्टगेजर है और मॉर्टगेजी है, तो इस सूरत में जो रेंट है वो उन दोनों में से किसके पास दिया जाए। तो इस सूरत में फिर वो ये बजाय आप ये देख लें कि बजाय वो इस चक्कर में पड़ जाए कि मैं किसको रेंट दूँ, वो जाके एक एप्लीकेशन देता है रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को जाके कहता है भाई कि देखिए जी ये प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो तो उसको देख के फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर रेंट जो अपने पास रख लेता है। An application on this behalf has to be made before revenue officer mentioning all the relevant grounds for deposit of such rent. Revenue officer at the expense of the tenant serve notice to the landlord and give him opportunity of hearing before giving the appropriate order. लेकिन अब वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो लैंडलॉर्ड्स को सुनेगा, अगर वो एक है या दो हैं या तीन है, जितने भी उनको वो सुनेगा कि भाई ऐसे मेरे पास आपका टेनेंट है और वो मुझे पैसे दे रहा है, आपको क्यों नहीं दे रहा, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो उस सूरत में फिर वो जो है जब वो लेता है, ये नहीं कि वो भी एकदम नहीं लेता, वो भी पहले ऑर्डर, वो भी पहले जाके उसको नोटिस सर्व कर वो कहता है, वो करता है। अब इफेक्ट ऑफ सच डिपॉजिट सेक्शन 32, अब अगर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या है। इट शैल बी डीम टू बी पेमेंट मेड बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, समझा यही जाएगा जैसे कि वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट चली गई। रेवेन्यू ऑफिसर में कॉल अपॉन एनी पर्सन और पर्सन्स whom he considers having right to receive such amount. So this is the discretion of revenue officer. He may pay such amount to the entitled persons thereto or retain such amount until the decision of competent court of law. या अगर उसके हो सकता है, देखे ना, अगर 2 से 3 लोग हैं उनका आपस में मसला चल रहा है उसकी ऑनरशिप का, उन्होंने सिविल कोर्ट में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगेन सिविल कोर्ट में डिसाइड होता है, वहाँ पे उन्होंने केस किया हुआ है, तो रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है वो ये करता है कि वो जो टेनेंट जो पैसे हैं वो उन पैसों को अपने पास रिटेन कर लेता है और इंतज़ार करता है कि भाई कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला देती है। जब वो फैसला देगी तो वो सारे पैसे उठा के उस फैसले वाले को, उस जो जीतता है केस उसको दे देता है कि जिसके हक में डिक्री होती है। No suit or other proceedings can be brought against government or any official of the government in this behalf, but at the same time such person will have the right to receive such amount from any person who was paid by revenue officer. देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर से बाय चांस किसी गलत बंदे को रेंट पे हो जाए, जो कि बहुत कम चांस है फॉर श्योर उसके, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता, तो उस सूरत में भी आप गवर्नमेंट को और ये रेवेन्यू ऑफिसर को आप सू नहीं कर सकते। हाँ, आप उस शख्स को ज़रूर सू कर सकते हैं जिस शख्स को रेवेन्यू ऑफिसर ने वो पैसे दे दिए। आप रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर के पास जाके कहेंगे भी, बताएंगे उसको भी आपने गलत बंदे को पैसे दे दिए, बंदे पैसे तो इसको देने चाहिए दूसरे को, फिर उस हिसाब से एक मुनासिब ऑर्डर दिया जा सकता है। सिर्फ इसमें आपने ये समझने की बात है इस पूरे इस क्वेश्चन में, स्पेशली इसके इस पार्ट में, कि डिपॉजिट ऑफ रेंट कब होता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास और उस डिपॉजिट का असर क्या है लैंड लॉर्ड और टेनेंट की जो आपस में रिलेशनशिप है। लेकिन याद रख लें कि टेनेंट जो है इस चीज़ को बहाना नहीं बना सकता कि भाई देखिए जी मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किसको पे करूँ तो मैं फिर पे ही ना करूँ किसी को। नो, वो फटाफट उसको वो उसको चाहिए कि वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाए, वरना वो डिफ़ॉल्टर कहलाएगा। सो आई होप दिस होल प्रेजेंटेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। अगर इसमें मज़ीद आपको क्लैरिटी चाहिए तो यू मे आस्क मी थ्रू अ मैसेज। थैंक यू।